Class, good morning, everybody. Are we good to go with the class? Okay, so I think that we should start. आप लोगों के एग्जाम कब फिनिश हो रहे हैं? When are the exams being ending? 19. Okay, class. 19 is your last exam. Okay. So let us move ahead with today's session. Let us begin. Okay, class. So today in today's session we are going to continue with the previous session that we had done. We had done in previous session we had done some passages, right? तो आज के session में भी हम कुछ passages ही करेंगे. We are going to read about them और कुछ और नया भी सीखेंगे along with that. Okay. तो shall we start? Okay. As we had done this passage, we had done this one too. We had okay. So we are having this one today. Okay. Yes. So class, give me 1 second, please. Okay, class. So what we are going to do, we are going to have this one. Yes, class. Am I audible to you now? Sorry, that was an interruption in between. Okay, so let us continue.
Class, can you please maintain silence? You should be maintaining silence, please. Everybody should be quiet. Class, keep quiet, please. Yes, class. Look at the board now. Is the screen visible to all of you? Okay, so today we are going to start with passage number 4, because we have completed 3 passages in the previous session and now this is the 4th one. Okay, so let us begin with this session. ये जो पिक्चर आपको GIF यहाँ पर दिख रही है, you are seeing a video over the screen. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can anybody tell me ये पिक्चर किसकी है और ये जो बड़ा सा स्टैचू है, what is this? Yes, very good. There's a statue of unity, right? Yes, ये statue किसके ऑनर में बनाया गया है? Is anybody going to tell me? ये जो statue है, this is statue of unity, right? लेकिन ये statue है किसका? Yes, yes. Because yes, Sardar Vallabhbhai Patel. Very good. But Sardar Vallabhbhai Patel कौन थे? Who was he? Yes. No, he was not the prime minister. He was actually the deputy prime minister. Prime minister नहीं थे. He was the home minister. Okay. Can you please take your seat? बच्चे please wait जाइए. Yes, very good. At least you tried. Nice try. Very good. Yes. तो सभी बच्चे very good. It's good for you. Good. It is good that you already know who is he and why the statue is called Statue of Unity. Is anybody going to tell me? कोई भी बच्चा कि इस स्टैचू को स्टैचू ऑफ यूनिटी क्यों कहा जाता है? यस, ये सबसे बड़ी व्हाट? वो सेम यार. अभी किसने कहा? अभी हु सेड क्योंकि वो सबसे बड़ी व्हाट? यस, जसमीत, कैन यू प्लीज स्टैंड अप एंड से इट अलाउड. सबसे बड़ी क्या है? ये सबसे बड़ी स्टैचू है, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टैचू है, राइट? बट ये स्टैचू ऑफ यूनिटी तो हम इन्हें कहते हैं, बट क्यों कहते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी? व्हाई इज इट कॉल्ड सो? एनीबडी एल्स? ओके, जसमीत, वेरी गुड, नाइस ट्राई, वेरी गुड. Okay, class. So मैं बताती हूँ आपको why is the statue. We already know that this is a statue of Sardar Vallabhbhai Patel, right? और सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? He was the first home minister of India. ठीक है? He was not the prime minister. He was the home minister. Okay? Okay? He was the first home minister of our country. हमारी कंट्री के, इंडिया के, भारत के सबसे पहले होम मिनिस्टर थे. He was the first home minister. और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे. डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं? जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल है एंड देयर इज अ वाइस प्रिंसिपल. वाइस प्रिंसिपल मैम है? है या नहीं है? ओके, नो प्रॉब्लम. इज देयर? समझिए, देखिए, अगर इन केस प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है तो देयर इज अ पर्सन हु इज अ सबऑर्डिनेट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, या कोई भी पर्सन है. इफ आई से प्रिंसिपल मैम है, इफ यू आर सपोज लेट्स से दैट योर स्कूल इज हैविंग अ वाइस प्रिंसिपल. आपके स्कूल में वाइस प्रिंसिपल मैम होती है, लेट्स से, ओके. और आपकी प्रिंसिपल मैम इन केस किसी वर्क की वजह से आपके स्कूल में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन एक अथॉरिटी तो होनी चाहिए जो प्रिंसिपल मैम के एब्सेंस में स्कूल को मैनेज कर सके, तो दैट इज द वाइस प्रिंसिपल. ओके, समझ में आ रहा है?
वैसे ही एक कंट्री में प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़ा मिनिस्टर होता है। यस और अगर मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो देयर शुड बी अ पर्सन जो प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे डिसीजन ले सके, तो वो होता है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। ओके, समझ में आया? जैसे हमारे प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट इज द सबऑर्डिनेट ऑफ द प्रेसिडेंट, वैसे ही प्राइम मिनिस्टर के भी सब डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर की एब्सेंस में कंट्री को मैनेज करते हैं। ओके, तो ही वाज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड आल्सो द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, दोनों थे। ओके, अब मेन पॉइंट ये है कि व्हाई वी कॉल द स्टैचू एज स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को डेडिकेटेड है, लेकिन वो क्या, दिस स्टैचू इज नोन एज स्टैचू ऑफ यूनिटी। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ये स्टैचू ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट डज यूनिटी मीन? Yes. Anybody said something? What? यूनिटी का मतलब क्या होता है? यूनिटी मतलब एकता। ओके, एकता मतलब अलग अलग लोग हैं, दे शुड बी यूनाइटेड। एक साथ जब वो लोग रहते हैं तो दैट इज कॉल्ड एकता। एकता को हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिटी। तो एकता का क्या मतलब था? सी देखो, जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ, व्हेन भारत गॉट इंडिपेंडेंस, जस्ट अ सेकंड प्लीज। देखिए, जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई ना, व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, तो हमारी कंट्री ना बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में टूट गई थी, दैट हैज ब्रोकन इनटू सेवरल पार्ट्स, और उन अलग अलग पार्ट्स को यूनाइट करने का काम, एक करने का काम किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, हमारी कंट्री, आप समझ में आ रहा है? देखिए, कभी अपने इंडिपेंडेंस की स्टोरी सुनी है? पार्टीशन कैसे हुआ हमारी कंट्री का, हाउ वी गॉट separated between India and Pakistan, दो अलग अलग कंट्रीज बन गई। इज एनीबडी, have anybody heard that story ever? Anybody? चलिए, इसकी स्टोरी मैं आपको किसी और दिन सुनाऊंगी, बिकॉज आई थिंक दैट वी डोंट हैव मच टाइम टुडे, या फिर अभी सुननी है? ओके, सो आगे के पैसेज नहीं हो पाएंगे फिर आज। चलिए, तो लेट अस बिगिन विद टुडे स्टोरी। देखिए, जो हमारी कंट्री थी ना, ब्रिटिश जर्नी जब यहाँ पे कब्जा किया हुआ था, तो हमारी कंट्री में बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स थे, राज्य थे। तो व्हाट हैड हैपेंड कि जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को छोड़ा, तो उन्होंने चॉइसेस दे दी थी कंट्री, जो ब्रिटिश के रूल के अंडर एरियाज थे, उनको ये चॉइस था कि आप या तो इंडिया का पार्ट बन जाओ या तो आप पाकिस्तान का पार्ट बन जाओ। लेकिन कुछ ऐसी जगह भी थी, ऐसी किंगडम्स भी थी जहाँ पर राजा रूल करते थे, राजा महाराजा, जिन्हें प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था। ठीक है, अब उन प्रिंसली स्टेट्स को चॉइस थी कि आप या तो इंडिया में आ सकते हैं, या तो आप पाकिस्तान जा सकते हैं, या तो आप इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? व्हाट वर द थ्री चॉइसेस दैट वर गिवन? द थ्री चॉइसेस वर आइदर यू बी विद इंडिया, या तो आप इंडिया के पार्ट बन जाइए, या तो आप पाकिस्तान के पार्ट बन जाइए, या तो आप इंडिपेंडेंट रह लीजिए। ठीक है, तो कुछ स्टेट्स ऐसे थे, कुछ किंगडम्स ऐसे थे जिन्होंने इंडिया का पार्ट बनने के लिए एग्री किया, कुछ ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान का पार्ट बनने के लिए एग्री किया, कुछ ऐसे थे जो इंडिपेंडेंट रह गए। लेकिन हमारी कंट्री में ऐसे बीच बीच में ऐसे सपोज करिए दैट दे बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री। आज हमारी कंट्री का मैप कैसा दिखता है? Okay, let me show you.
Okay, class, let me show you one thing. मैं आपको मैप दिखाती हूँ कि इंडिया का मैप कैसा दिखता था when it was not united. Okay, देखिए, what you are seeing over the screen is a map. दिख रहा है सबको? हमारी कंट्री इतने सारे पार्ट्स में टूटी हुई थी. सी इधर येलो कलर यू आर सीइंग, येलो वाला वो पार्ट था जो ब्रिटिशर्स के अंडर था, और जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है दैट वाज द प्रिंसली स्टेट. एज आई सेड कि प्रिंसली स्टेट क्या थे, जिन पे राजा रूल करते थे. ओके, समझ में आ रहा है क्लास? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो क्या हुआ, येलो वाला जितना भी पार्ट था उनमें दो ऑप्शंस थे, या तो आप इंडिया में चले जाइए या तो आप पाकिस्तान में चले जाइए. तो कुछ स्टेट्स थे लाइक पंजाब आपको दिख रहा है, इसके दो पार्ट किए गए. सिंध आपको दिख रहा है, यू सीइंग जहाँ पर मैं कर्सर को स्क्रॉल कर रही हूँ, सिंध. यहाँ पर बलोचिस्तान हो गया, ये पार्ट थे जो पाकिस्तान में चले गए. लेकिन बहुत सारे पार्ट्स ऐसे थे जो इंडिया में रह गए. ये देखिए, जो येलो कलर का ये आपको दिख रहा है, ये कुछ पार्ट, सेंट्रल प्रोविंस, नागर हवेली, मद्रास, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंसेस, ये पार्ट्स ऐसे थे जो क्या हुए, इंडिया में रह गए. लेकिन ये जो पिंक कलर के पार्ट थे, दिख रहे हैं सबको? ये जो पिंक कलर के पार्ट थे उनके पास थ्री ऑप्शंस थे, या तो आप इंडिया में रहिए, या तो आप पाकिस्तान चले जाइए, या तो आप इंडिपेंडेंट रह लीजिए. इंडिपेंडेंट का मतलब आप अपनी अलग कंट्री बना सकते हैं. ओके, तो इन सबको यूनाइट करने का काम किया, इनको मनाया. सरदार पटेल जो थे उन्होंने सबको यूनाइट किया, उन सबने इंडिया, उन्होंने मनाया इंडिया को कि हम क्या करें, अलग अलग कंट्रीज को मनाया, जो किंगडम्स थी उन्हें मनाया कि आप इंडिया का पार्ट बन जाइए. एंड वी नो आज इंडिया का पार्ट कैसे, आज इंडिया कैसा दिखता है ना? चलिए, तो ये जो यूनिफिकेशन का काम था दैट वाज डन बाय सरदार पटेल. अगर सरदार पटेल नहीं होते, जो हमारी कंट्री जैसे आज दिखती है वैसी नहीं दिखती. ओके, व्हाट वी गॉट इज this. Okay, class. So let's read the passage now. Are you getting the video over the screen? Okay. So here we have the passage. Okay, who is going to read it? Where's Simran? गुड मॉर्निंग मैम. Good morning, Simran. How are you doing? खड़े हो बस, कोई बात नहीं. गुड मॉर्निंग मैम. Good morning, Simran. How are you doing? Simran, am I audible to you? Is my voice coming there? Okay, so please read this passage. This is Statue of Unity, Yes. which is the Yes. TALLEST. Tallest tallest statue. statue in the world. Yes, very good. It is SITUATED. Situated. situated at the bank Yes. of river Yes, very good. Near of river what? Which river is it written? NAR. Nar. MAMDA. Da. Narmada. Narmada, Yes. near Mm-hmm. Yes. KEKVAV Yeah. Kevadia. Kevadia in G Yes. Very good. Gujarat. Gujarat. It plays Place. Simran, it's not place, it pays. pays Yes. T.
Narmada. No, this is TRI. Tree. BU. Boo. TE. Tube. Tribute. Tribute to the first fourth minister of Yes. one. Is it one? OUR. Is it one? No, What is our it? No, I told you this is not our. This is our. our Yes. continent No. COUNTRY. It's country. country Yes. state No. SAR. Sir. DAR. Dar. Sardar. Sarkar Yes. Vallabhbhai Patel. He unity United. our city No, सिमरन वहां पर यूनिटी में वाई लगा है लास्ट में. इज इट वाई? unity No, this is not unity. Read it properly. UNI. Unite. TED. TED. United. united our city R. our city COUNTRY. Country. city Post. post independent Yes. and hence hence Yes. we Hmm. called Call him. the Hmm. Iron No, what is it? IRON. Iron. Iron Man of India. Okay, Simran, you said iron. This is not iron, it's iron. Okay? Iron Man of India. Okay, very good, Simran. आप घर जाके practice कीजिए. Okay, you need to be very thorough in speaking, at least in reading. Okay? घर जाके reading की practice करिए. Okay? Yes, Post your exams. Okay, class, is anybody else is going to read this passage? Can we have Priya? Where's Priya? Is she present in the class? good morning, ma'am. Good morning, Priya. Will you read the passage, please? Yes, ma'am. This is the Statue of Unity, which is the tallest statue in the world. It is situated at the bank of river Narmada near Kavedia No, in no, no, Gujarat. no, no. This is not Kaveria. Read it VKEKVA. VDIA. Ria. केवड़िया. This is the name of a place. Okay, गुजरात में एक जगह है. जैसे हमारे आपके शहर का नाम क्या है? बाजपुर. जहाँ मैं रहती हूँ that is called हरिद्वार. वैसे ही there is a place in Gujarat which is known as केवड़िया. Okay, तो वो लिखा है यहाँ पर. Yes. Kevadia in Gujarat. केवड़िया. Kevadia in Kevadia in Gujarat. It pays tribute to the first Home Minister of our country, Sardar Priya, this is Vallabhbhai. not our. This is pronounced as our. Our Okay? country, Sardar Vallabhbhai Patel, he our United united our country, host independence. independence, and hence we call him the Iron Man of India. Yes. But this is not pronounced as iron. इसे हम क्या बोलते हैं? IRON. Iron. देखिए, class, listen everybody. Yes, very good, Priya. Nice try. Very good. Everybody, please have a round of applause for Priya.
ओके क्लास, लिसन टू मी केयरफुली। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, लास्ट लाइन में देखिए, सेकंड लास्ट लाइन में, इट्स कॉल्ड, इट्स रिटन, वी कॉल हिम द आयरन मैन ऑफ इंडिया। देखिए जहाँ पर भी जनरली इंग्लिश में क्या होता है, देर आर फ्यू वर्ड्स जहाँ पर मोस्ट ऑफ केसेस में आर साइलेंट होता है। ओके जैसे यहाँ पर लिखा है IRON, इट्स नॉट आयरन, इट्स आयन। कहीं कहीं पर हम क्या करते हैं, बोलते समय इंग्लिश में आर को स्किप कर देते हैं। दैट इज जैसे यहाँ पर लिखा है IRON, जनरली अगर हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो दैट विल बी प्रोनाउंस एट आयरन, बट दैट इज नॉट आयरन, इट इज प्रोनाउंस एट आयन। यहाँ पर आर साइलेंट होता है। ओके क्लास, व्हाट इज इट रिटन? क्या लिखा है? दिस इज नॉट आयरन, दिस इज iron. What is it? Iron. Okay, iron. Okay class, repeat with me. Iron. This is iron. Okay, Okay, ma'am. चलिए, डू यू अंडरस्टैंड दिस पैसेज, और या फिर हम इसे हिंदी में समझें? Shall we read it in Hindi or shall we move ahead? आपको ये पैसेज समझ में आया? सबको? ओके सो क्या हिंदी में बताना है? इज देयर एनीबॉडी जो हिंदी में इसको समझना चाहता है, और शैल वी मूव अहेड? हिंदी में समझना चाहते हो? Yes, ma'am. ओके 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 क्लास। Okay, so this is the Statue of Unity. Okay, class, I'm reading it. Read it. Listen to it carefully. This is the Statue of Unity, which is the tallest statue in the world. यानी ये picture. अरे What happened, class? Is it not visible over the screen? मैम लाइट चली गई है। Okay. Okay. Okay, class, keep quiet. Keep silence. Keep silence. Keep silence. बात नहीं है बस। No unnecessary talking. ध्यान से सुनेंगे सब, बिल्कुल साइलेंटली। ओके, सो दिस इज द स्टैचू ऑफ यूनिटी विच इज द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड। यानी ये पिक्चर किसकी है? दिस इज द स्टैचू ऑफ यूनिटी, एज वी सेड स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी एकता की मूर्ति, राइट? विच इज द स्टैचू, विच इज द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड, यानी पूरी वर्ल्ड में सबसे टॉल यानी सबसे लंबा स्टैचू है। इट इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा नियर केवड़िया इन गुजरात। यानी ये कहाँ पर है? नर्मदा रिवर है, राइट? अब जैसे हमारे यहाँ कौन सी रिवर है? नॉर्थ में वी हैव गंगा, वी हैव यमुना, वी हैव मल्टीपल रिवर्स, राइट? वैसे ही वी ऑल्सो हैव अ रिवर इन सेंट्रल इंडिया जिसका नाम है नर्मदा। ओके, और नर्मदा रिवर को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ओके, तो नर्मदा रिवर, उसके पास एक सिटी है नर्मदा रिवर के किनारे, केवड़िया नाम की। वहां पर we have the Statue of Unity. It pays tribute to the first Home Minister of our country, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी ये किसके ऊपर ट्रिब्यूट है? ये किसको श्रद्धांजलि एक तरीके से, दैट इज टू सरदार वल्लभ भाई पटेल, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, ही यूनाइटेड आवर कंट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस, हमारी कंट्री को, पोस्ट मतलब बाद में, सॉरी, यानी इन्होंने हमारी कंट्री को, जैसे मैंने आपको अभी स्टोरी सुनाई कि हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस इन्होंने यूनाइट किया था। Yes, ma'am. इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया। Yes, ma'am. Sorry class. Okay, let's just move ahead to the next. Yes, Hey, what picture are you seeing on the screen? Yes, this is the picture of Kedarnath ji, right? ये केदारनाथ जी का, no, this is not Badrinath class. It is not Badrinath. This is not Badrinath. This is the temple Kedarnath. Shri Kedarnath ji का temple है ये, and this is one of the most sacred place in our, not just in Uttarakhand, but in the entire country. ठीक है, अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर घूमने आते हैं केदारनाथ जी में, और बहुत ही सुंदर जगह है। जितनी सुंदर, जितना डिवाइन ये टेम्पल है, उतनी ब्यूटीफुल जगह पर ये लोकेटेड है।
Okay, so let us have the passage now. Yes, where's Tanvi? Where's Tanvi Bhardwaj? Tanvi Bharadwaj. So sorry, class. Please excuse me. Yes, Tanvi, can you read the passage? Good morning, ma'am. Good morning, bache. How are you doing? I am fine. Okay, so read the passage, please. Sri Kedarnath Dham is one of the Char Dham of Uttarakhand, often referred as No, wait. As I told you कि कहीं पर क्या होता है आर साइलेंट होता है, यहाँ पर जो आपने वर्ड कहा OFTEN, दिस इज नॉट ऑफ्टन, यहाँ पर एन साइलेंट होता है, वहां पर टी साइलेंट होता है, वी प्रोनाउंस इट एज ऑफन. ओके, OFTEN, दिस इज नॉट ऑफ्टन, दिस इज ऑफन. ओके, यस, नाउ often referred as Chota Char Dham. very It good. is a Tanvi, sacred. you need to pause a little bit when there is a full stop and a comma. Okay, yes. It is a scared place, Sacred, this is pronounced as sacred. sacred place where Lord Shiva is worshipped. The temple is situated in the mountains covered with snow. It is also famous for its scenic beauty. The surroundings of Kedarnath are breathtaking with tall snow capped peaks and lush green valleys. It has a huge religious This is huge, huge huge. it has a huge religious importance among people of the Hindu community. Yes, but this is not pupil. This is people. PEO, people. Okay. Okay, Tanvi, what is it pronounced at? It is not pupil or whatever you said. This is people. Okay. Okay. Class, समझ में आया? Yes, Should I translate it in Hindi? देखिए, सी देयर हैव फ्यू वर्ड्स जिनका मीनिंग आपको समझना बहुत जरूरी है. ओके, लेट अस रीड इट. रीड केयरफुली. देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, अच्छे से सुनिए. जब मैं रीड करती हूँ, इसको रीड करने का पर्पस ये नहीं है कि एनीथिंग एल्स, बट वी आर गोइंग टू टेक टू थिंग्स. पहली चीज, यू गॉट टू नो अबाउट अ न्यू थिंग, एंड द सेकंड थिंग कि आपको रीड करना आएगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रीड. ओके, जब तक आपको रीड करना नहीं आएगा, यू वोंट बी एबल टू स्पीक वेल. ओके, सो ध्यान से सुनेंगे. श्री केदारनाथ धाम इज वन ऑफ द चार धाम ऑफ इंडिया, ऑफन रेफर्ड एज छोटा चार धाम. देखिए, चार धाम सबको पता है क्या होता है. yes, ma'am. ओके, देखिए, अब यहाँ पर दो चार धाम होते हैं. चार धाम हमारे उत्तराखंड में भी चार धाम है, जिसमें चार नाम आते हैं, विच इज बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री. ये चारों नाम हमारे उत्तराखंड के चार धाम हैं. इनको छोटा चार धाम भी कहते हैं. और हमारी कंट्री में चार धाम है जिनकी यात्रा मोस्टली बहुत सैक्रेड मानी जाती है. विच द फर्स्ट वन इज बद्रीनाथ, second one is Dwarka, the third one is Rameshwaram, and fourth one is Jagannath Puri. Bluetooth mode. Okay, class, please take your time to be adjusting yourself. Fine, are you comfortable now? Yes, class, is it? Am I audible to you now? ओके क्लास, फाइन. सो इंडिया में देयर आर फोर धाम्स. वैसे ही हमारे उत्तराखंड में भी चार धाम है, और उन्हें हम कहते हैं छोटा चार धाम. ओके, तो छोटा चार धाम के एक पार्ट है श्री केदारनाथ धाम. ओके,
इट इज अ सैक्रेड प्लेस. सैक्रेड, SACRED, सैक्रेड. सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र. ओके, तो पवित्र है ये बहुत ज्यादा प्लेस, तो इसीलिए वी कॉल इट अ सैक्रेड प्लेस. ओके क्लास, राइट इट इन योर नोटबुक. राइट अ वर्ड सैक्रेड, SACRED, डैश करके राइट इट्स मीनिंग पवित्र. एंड यू नीड टू रिमेम्बर. ओके क्लास, लेट मी टेल यू वन थिंग. मैं आपका मंथ में 2 बार, एटलीस्ट 2 टाइम्स इन अ मंथ, आई विल बी टेकिंग योर टेस्ट, वोकैबुलरी टेस्ट. जितने भी वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं इन एवरी सेशन, जितने भी वर्ड्स हैं, बी इट एनीथिंग, जो भी मैंने आपको, जब इतने वर्ड्स आपको अभी तक सिखाए हैं ऑल द सेशंस, आई एम गोइंग टू टेक योर टेस्ट फॉर दैट. ओके क्लास, गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो आई बी टेकिंग योर टेस्ट एनी रैंडम डे विदाउट प्रायर इंफॉर्मेशन. मैं रैंडमली उठा दूंगी आप में से किसी को भी, एंड देन आई विल बी आस्किंग यू द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एंड यू नीड टू बी नोइंग दैट. ओके फाइन. Yes, ma'am. Yes. Okay, so write sacred and dash करके पवित्र is the meaning of this word. Is class done? Yes, ma'am. Done or not? Okay, so let us move ahead. Where Lord Shiv is worshipped. अच्छा, अब एक बात ध्यान दीजिएगा. तन्वी, when you said SHIVA, what do you pronounce it as Shiv or Shiva? शिवा, बट दिस इज नॉट प्रोनाउंस एट शिवा. देखिए, जब भी क्या होता है, हम किसी भी इंग्लिश कोई भी वर्ड, भगवान जी का नाम लेते हैं, लेट्स से जब हम भगवान राम को बोलते हैं तो हिंदी में भी कॉल इट राम, है ना. बट जब हम उसको इंग्लिश में लिखते हैं तो हम RAM राम नहीं लिखते, दैट इज RAMA, रामा. ओके, रामा इज नॉट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, बट इट इज राम. ओके, सो यहाँ पर भी SHIVA, इट इज, भले ही भगवान शिव है, शिव के नाम के पीछे A लगाया हुआ है, तो दैट डज नॉट बिकम शिवा, दैट इज शिव. आप उसे शिव ही पढ़ेंगे. ओके क्लास, लिखने में भले ही वी एड अ A एट द एंडिंग, बट इट इज प्रोनाउंस एट सेम एज वी प्रोनाउंस इट इन हिंदी. तो ये क्या है? शिव, लॉर्ड शिव. ओके, इट इज अ सैक्रेड प्लेस वेयर लॉर्ड शिव इज वर्शिप्ड. The mountains, the temple is situated in the mountains covered with snow. यानी ये जो टेम्पल है, केदारनाथ जी का मंदिर जो है, वो माउंटेन्स यानी पर्वतों के बीच में सिचुएटेड है, दैट आर कवर्ड विद स्नो. यानी किसी ने कोई, हैव यू एवर बीन टू केदारनाथ, एनीबॉडी ऑफ यू? No, ma'am. नो. ओके, तो हैव यू सीन द पिक्चर ऑफ केदारनाथ जी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपने देखा होगा कि जो केदारनाथ जी है, उसके जो मंदिर है केदारनाथ जी का, उसके पीछे जो माउंटेन्स है, दोज आर कवर्ड विद स्नो. मतलब बहुत ज्यादा बर्फ से घिरे हुए हैं. ओके, तो दैट इज बीइंग रिटन हियर दैट इज सिचुएटेड इन द माउंटेन्स कवर्ड विद स्नो, यानी बर्फ के पहाड़ों से, पर्वतों से कवर्ड है. इट इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी. व्हाट इज सीनिक ब्यूटी? सीनिक का मतलब होता है जो सीन्स होते हैं, सिंपली. अगर हैव यू एवर बीन टू माउंटेन्स, कोई पहाड़ों से है यहाँ पर? कोई है पहाड़ का? हैव यू एवर बीन टू माउंटेन्स? किसी ने कोई जो हिली प्लेस है वो विजिट किया है? हैव यू एवर बीन टू अ हिली स्टेशन? ओके, आपने देखा होगा पर्वतों में जब हम जाते हैं, पहाड़ों में जब हम जाते हैं, तो हमारे सामने जो सीन्स आते हैं ना, दोज आर नोन एज सीन्स. ओके, सीनिक ब्यूटी का मतलब होता है सीनरी सॉर्ट ऑफ समथिंग. जो सीनरी को देख के हमें ब्यूटीफुल लगता है, तो दैट इज सीनिक ब्यूटी. Okay, fine. Understood, class? Understood? Okay. The surrounding of Kedarnath are breathtaking. Breathtaking का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल. जब हमें कोई चीज बहुत ज्यादा ऐसी लगती है, दुर्लभ या आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप, तो we say it breathtaking. Okay. The surroundings of Kedarnath are breathtaking with tall snow-capped peak. Snow-capped मतलब स्नो से कवर्ड, पीक मतलब चोटियां. ओके, तो चोटियां किससे घिरी हुई? स्नो से. एंड लश ग्रीन वैलीज, और वैलीज कैसी है? ग्रीन है. देयर आर मल्टीपल ट्रीज अराउंड दैट, और इसीलिए वहां पर पहाड़ भी है, पर्वत भी है, कवर्ड विद स्नो, और वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे भी है, तो वहाँ ग्रीनरी भी है. ओके,
it has a huge religious importance among people of Hindu community. यानी हिंदू कम्युनिटी के जो लोग हैं, people like us, उनके रिलीजियस यानी धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है केदारनाथ जी के लिए. ओके क्लास, अंडरस्टूड? Okay, shall we move ahead? Or we should be ending the class? Can I please talk to your teacher? Ma'am, are you there? Yes. Ma'am, can we have the next passage or should be ending the class right here? मैं If the हिंदी में तो थोड़ा रही है. मैम मैं कह रही थी कि अब हमारे पास टाइम है सो दैट वी कैन टेक द नेक्स्ट पैसेज. अगला पैसेज ले लिया और शुड वी एंड द क्लास इफ यू हैव 10 टाइम? minutes है मैम. ओके सो वील बी एंडिंग मतलब हम खत्म कंप्लीट कर लेंगे इन नेक्स्ट 10 minutes. ओके मैम, थैंक यू. चलिए, द नेक्स्ट पैसेज दैट वी आर हैविंग, व्हाट इज इट? Jalebi. Who does like jalebi? Who likes jalebi? Is there anybody? Okay, class, please hands down. Is there anybody जिसे जलेबी अच्छी नहीं लगती? Don't like जलेबी? Anybody? जिसे अच्छी नहीं लगती? Oh, I. You don't like jalebi? Okay, class. Everybody have a different taste. No problem. चलिए, तो जलेबी इज अ डिलीशियस स्वीट. सबको अच्छी लगती, ऑलमोस्ट सबको अच्छी लगती है, इंक्लूडिंग मी एंड इंक्लूडिंग सेवरल स्टूडेंट्स सिटिंग हियर, दैट इज सिटिंग हियर. एंड कुछ बच्चों को नहीं भी पसंद, दैट्स कंप्लीटली फाइन. दैट इज योर पर्सनल टेस्ट एंड योर पर्सनल चॉइसेस. ओके, कैन वी हैव द पैसेज? हु इज गोइंग टू रीड इट? कैन वी हैव भूमिका, आर्या? Yes, Bhumika, do you like jalebi? Yes, ma'am. Okay, so read the passage now. Yes, Bhumika, please read. Ma'am, jalebi is a famous sweet of What is it written? F-A, F-A, M-O, Mo, U-S, us, famous. famous sweet of our This is not our, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, this is not pronounced at our, this is O-U-R, R. Okay? Yes, of our country. our country. It Taste, yes, taste sweet as it is made yes, with sorry. a M-I-X-T-R M-I-X, mix, T-U-T-R-E, chur, mixture. mixture of No, this is not flour. मैंने आपको लास्ट सेशन में भी एक बार बताया था when we read about समोसा, राइट? समोसा के बारे में पढ़ा था हमने in the previous session. तो FLOUR हमने इसे क्या बताया था, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? इट इज FLOUR, फ्लावर. ओके, OUR को क्लास लिसन टू मी, OUR को कैसे प्रोनाउंस करते हैं? OUR इज R. ओके, इट्स R. तो FLOUR, FLOUR को क्या पढ़ते हैं? R. तो उसके आगे L लग जाएगा तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? इट्स फ्लावर. ओके,
ओके भूमिका, यस अब रीड कीजिए. Flowers S नो and यस यस yogurt yogurt. yes Much is which is first yes leaf dipped dip deep no sorry which is first deep fried का मतलब होता है तलना. Okay deep class everybody what is it deep fried means deep fried का मतलब होता है तलना. Okay what is flour, what is written here, it is a mixture of flour and yogurt. What is flour? आटा. yes जनरली फ्लावर का मतलब आटा भी हो सकता है या मैदा भी हो सकता है. ओके एंड व्हाट एंड फ्लावर के बाद क्या लिखा है, व्हाट इज इट रिटन, YOGURT, व्हाट इज इट, and योगर्ट. यस व्हाट इज योगर्ट, योगर्ट मतलब क्या होता है, एनीबॉडी, योगर्ट का मतलब flour means maida, right? Class, are you listening to me or are you talking in yourself? Everybody should be quiet. योगर्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू वी कॉल योगर्ट, योगर्ट का मतलब होता है दही. ओके राइट इट, राइट अनदर वर्ड YOGURT. भूमिका आप भी लिख लीजिए प्लीज, आई बी रीडिंग दिस. ओके आप भी लिख लीजिए प्लीज, गेट बैक टू योर सीट, थैंक यू फॉर कमिंग. हाँ जी तो राइट इट योगर्ट, YOGURT, योगर्ट को हिंदी में हम कहते हैं दही. ओके यस क्लास सबने लिख लिया है, योगर्ट मीन्स दही. चलिए तो क्लास लेट मी रीड इट फॉर यू बिकॉज वी आर हैविंग लेस टाइम विद अस. मैं इसको रीड कर रही हूँ, एवरीबॉडी शुड बी लिसनिंग इट. ओके क्लास रेडी? ओके जलेबी इज अ फेमस स्वीट ऑफ आवर कंट्री, यानी हमारी कंट्री की एक बहुत ही फेमस स्वीट, स्वीट यानी मिठाई. यस इट कैन बी मीठा और इट कैन बी मिठाई. ओके जलेबी हमारी कंट्री की बहुत ही फेमस मिठाई है. इट टेस्ट स्वीट as it is made with a mixture of flour and yogurt which is first deep fried and then soaked in sugar syrup. Okay अब बता रहे हैं, दे आर सेइंग दैट ये मीठा होता है, स्वीट होता है, बिकॉज ये किससे बना होता है, मिक्सचर, मिक्सचर यानी मिक्स है, मिक्स किसका है, फ्लावर, फ्लावर यानी आटा, सिंपली वी कैन से आटा या मैदा, बट वी नो मैदा, जो जलेबी है दैट इज मेड अप ऑफ मैदा एंड योगर्ट, योगर्ट मीन्स दही. तो हैव यू, अगर आपने कभी जलेबी बनते हुए देखी है तो यू माइट नो व्हाट द इंग्रेडिएंट्स आर, विच इज फर्स्ट डीप फ्राइड. डीप फ्राइड का मतलब होता है तला हुआ. ओके कुकिंग करने के बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं, कभी हम सॉटे करते हैं, कभी हम शैलो फ्राई करते हैं, कोई अलग अलग तरीके होता है. आई विल बी टेकिंग इट द नेक्स्ट सेशन बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम टुडे. बट यहाँ पर अभी समझिए डीप फ्राइड, डीप फ्राइड का मतलब होता है तलना. ओके यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज तलना, तला कैसे जाता है. ओके तो राइट दिस वर्ड अगेन, डीप फ्राइड, डीप फ्राइड का मतलब होता है तलना. जैसे वी से पूरी को तला जाता है ना, उसके अलावा समोसा, देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो कि हम तल के खाते हैं. ओके तो राइट डीप फ्राइड, डैश करके तला हुआ या तलना सिंपली. इसका अर्थ आपकी छुट्टी हो गई है एंड यू आर रशिंग टुवर्ड्स योर होम, तो जल्दी जल्दी लिखिए, इसको कंप्लीट कीजिए.
Okay, which is first deep fried and then soaked in sugar syrup. Sugar syrup यानी वेरी गुड, चाशनी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? शुगर सिरप. यू कैन ऑल्सो राइट इट शुगर सिरप डैश करके चाशनी. ओके, राइट इट फास्ट. जल्दी लिखो. Okay, class. It tastes best. Okay, listen. It tastes best when eaten warm, but tastes well chilled too. यानी जनरली लोगों से मीठा जो जलेबी है उसे गरम गरम खाया जाता है. एज वी आई रिमेम्बर कि जब मैं छोटी थी बहुत, तो मेरे मामा जी जब हम नानी के यहाँ जाते थे तो मेरे मामा जी जब लेके आते तो ही यूज्ड टू से उसे जल्दी जल्दी खा लो नहीं तो ठंडी हो जाएगी. तो दैट माइट बी द केस विद यू ऑल्सो कि गरम गरम जलेबी ही पसंद की जाती है बट ठंडी होके भी अच्छी लगती है. इट्स often eaten with rabri, which is another Indian sweet of condensed milk. यानी जनरली कभी कभी क्या होता है, जलेबी को रबड़ी के साथ भी खाया जाता है. हैव यू इवन रबड़ी? एनीबडी? लगभग सब बच्चों ने खाई है रबड़ी. तो जलेबी को रबड़ी के साथ भी खाया जाता है. एंड वी हैव रिटन विच इज अनदर इंडियन स्वीट, जो कि एक और इंडियन स्वीट होता है मेड ऑफ कंडेंस मिल्क. कंडेंस मिल्क का मतलब क्या होता है? दूध. आपको पता है रबड़ी कैसे बनाई जाती है? दूध को कढ़ा के, है ना? तो जो कढ़ाना होता है, दूध को कढ़ाना होता है, उसे कंडेंस मिल्क बोलते हैं. ओके, तो यू कैन ऑल्सो राइट इट कंडेंस मिल्क डैश. स्पेलिंग यहाँ से लिख लीजिए CONDENECD. कंसेंट कंडेंस्ड मिल्क यानी डैश करके कढ़ा हुआ दूध. लास्ट वाला वर्ड है. ओके, यू कैन राइट इट फॉर योर नॉलेज. कंडेंस मिल्क मतलब कढ़ा हुआ दूध. Not done? Okay, complete it fast. Class fast. Done? Everybody? Okay, we are taking another 2 minutes. अब 2 मिनट में क्लास को एंड करेंगे. Okay, तो what is the word written here? HOTEL. What is it pronounced as? I expected that you would be saying hotel, but this is not hotel. Class, this is not hotel. I'm getting the right pronunciation from anybody who is saying hotel or something. See, this is not hotel. Class, this is hotel. What is it? Hotel. How is it pronounced at? Hotel. Okay, this is hotel. What is it? Hotel. Okay. Okay, class, repeat with me fast. Hotel. This is okay. Yes, write its pronunciation that you are seeing over the screen right here. This is hotel. Hotel. And there is another word. इसके similar है MOTEL. अब इसका pronunciation मुझे बताएंगे. What is it written? Yes, this is very good, class. Very good. This is motel. Okay, this is motel. MOTEL, motel. And what is it pronounced at? MOH, motel. Okay, motel. Yes, class done? We don't have the passage, we don't have the homework. Okay, class, we will be ending the class right here. मजा आया आज की क्लास में? Okay, so I actually had given you a homework, but this is not your homework. Homework आपको नहीं दिया जाएगा till the time you are having your exams. जब तक exams हैं तब तक homework नहीं है, but we are going to have your homework after your exams. Okay, class. Was the class? Okay, class. Goodbye.